Good morning students, and this is video for class 8 science, and the branch is physics, and your first chapter is force. Okay, so according to your syllabus I'm going to give this in your periodic first, and the chapter name is force. I have already sent some videos related to this topic, but no one is responding. Only one or two boys or girls are responding. Okay, so I'm going to give a brief explanation of this chapter. Okay, so you have to understand carefully, you have to listen carefully. Okay, and if you have any problem, then you can ask me. Okay, so first of all, related to our topic, that is force, then what is force? So we can say that pulling or pushing is the force. It is the act which may be causes by pull or push. बोल सकते हैं ना कि किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पुल और पुश करते हैं, तो दैट मीन्स हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. सो in brief definition we can say that anything that causes a change in the state of motion is called force. Anything that causes a change in the state of motion, that means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन में है, मोशन में किस लिए आता है, कैसे आता है, बिकॉज ऑफ फोर्स. जब तक हम उस बॉडी पे फोर्स नहीं एक्सर्ट करेंगे, जब तक उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ओके, सो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स? Here are the so many example, like action like lifting, kicking, stretching, hitting, throwing, catching, jumping, pressing, bending, twisting, etc. are the causes of motion. Causes of motion. यहाँ पे क्या है कि जब तक हम टेक एग्जाम्पल लाइक जंपिंग, जंप करते हो, दैट मीन्स यू कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन योर लेग, ऑन योर बॉडी. जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगाते हो आप जंप नहीं कर सकते हो. प्लेइंग, जब प्ले करते हो तब भी आप क्या करते हो, फोर्स एक्सर्ट करते हो, तभी आपका बॉडी का क्या होता है, मूवमेंट होता है. ओके, एंड हियर आर द सम एग्जाम्पल. अ बुलक पुलिंग अ कार्ट, अ बुलक पुलिंग अ कार्ट. यहाँ पे क्या होता है, जब ये फोर्स एक्सर्ट करता है तो क्या होता है, it causes motion and that is called force. Okay, so thus we can say that every action that cause a motion is a kind of force. Okay, and here unit of the force is Newton. क्या होता है फोर्स यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट्स. Two or more students yesterday asked that Miss please clear this topic, that force acts when object interacts. First of all we try to understand the topic. Force act when object interact, मतलब फोर्स तभी एक्ट होगा जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंटरैक्शन होगा. ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा. दैट मीन्स दे विल कम इन कॉन्टैक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल we can take example, the book lying on the table will not move unless we push or pull it. जब तक हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे रखा हुआ अगर बुक हो, वो अपने आप मूव नहीं करेगा, कोई वहाँ पे जादू नहीं होगा. जब तक हम क्या करेंगे, उसको आइदर वी पुश और पुल. डू यू फाइंड डिफरेंस बिटवीन पुश और पुल? व्हाट इज पुश एंड पुल? ओके, पुश इज दैट मीन्स इन इनवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर ये डोर है, ओके, सो व्हेन वी पुश दैट मीन्स वी पुश इट, दैट मीन्स हम लोग इसको इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं. यू कैन feel it in any showroom. When we go in a showroom or in any branded shop, the door is like that you can push or you can pull it. Okay, so pull means outward direction and push is inward direction. Okay, so the book that was lying on the table will not move unless we apply पुल और पुश. वो बुक कभी भी मूव नहीं होगा. दैट मीन्स द डोर विल नॉट ओपन अनलेस वी पुश और पुल. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स
दैट मीन्स जब तक वो हमारे हाथ से विथ आवर हैंड हम लोग जब तक उसको पुश और पुल नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव नहीं करेगा. सो फोर्स एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट्स. यहाँ पे हैंड और डोर का क्या हुआ, इंटरैक्ट हुआ, तभी जाके क्या हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुआ. बट हियर some examples are there, that is in your book that will give and I think this will cause some confusion in your mind, that here it is given that the example of magnet. Okay, so magnet can pull iron without touching them. So here how can we say that force exert when object interacts? So यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेट क्या करता है, ऑल्सो पुल अप पुश ऑन आयरन. क्या करता है, मैग्नेट जो है हम वो भी क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है. और वो जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है आयरन को, क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है. लेकिन यहाँ पे बस मैग्नेट पुल बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन मैग्नेट इंटरैक्ट्स विथ आयरन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो है मैग्नेट का क्या है, प्रॉपर्टीज है कि वो क्या करता है, वो मेटल को ही अट्रैक्ट करता है. दैट मीन्स आयरन इज अ मेटल एंड व्हेन मेटल इज कॉन्टैक्ट विद अ मैग्नेट दे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेट पुल इज अ फोर्स दैट एक्ट इवन व्हेन इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. हमेशा यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं होगा, इनडायरेक्टली कांटेक्ट होगा. और यहाँ मैग्नेट क्या करता है, पुल करता है. इट नॉट पुश बट इट पुल, ये करता है अपनी ओर उसको खींचता है. ओके, दैट मीन्स इट इज अ इनडायरेक्ट कांटेक्ट विथ मैग्नेट आयरन, मैग्नेट एंड आयरन. ओके, इट्स क्लियर. So we can take also example with the direct contact, that is when two objects in contact, that when we kick a football it moves away. जब हम लोग फुटबॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं, तो ये मूव करता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट फोर्स हैज एक्टेड ऑन द फुटबॉल. फोर्स क्या हुआ, एक्ट हुआ है फुटबॉल पे. एंड ऑल्सो फोर्स हैज ऑल्सो एक्टेड ऑन आवर फुट. तो हमारे फुट पे भी फोर्स लगा, जब तक हम फुट से फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो बॉल क्या होता है, मूव नहीं करता है. ओके, सो देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन आवर फुट एंड द ball, that means football. Okay, so any problem in this topic, that means force act when object interacts. I don't think you have any problem, but if you have, then you can ask again. Okay, your next topic is resultant force. What is resultant force? Resultant means मतलब उसका total result. So sometimes होता क्या है, the force applied on an object is not sufficient. हम लोग जो फोर्स अप्लाइड करते हैं दैट इज नॉट सफिशियंट टू मूव द ऑब्जेक्ट. इन सच केस वन नीड अप्लाई मोर फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट. तो इस केस में होता क्या है कि जब भी जैसे अगर कोई डोर है, ठीक है, तो अगर वन बॉय इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दैट मीन्स पुशिंग दैट और पुलिंग दैट, देन द डोर विल नॉट ओपन. बट अनदर बॉय कम and he pushes it and pulling it, that means and the door is open. Then what is the difference between that? The magnitude of the force exert. That means जो फर्स्ट बॉय था उसने उतना that much force उसने नहीं अप्लाई किया जितना उस डोर को ओपन करने के लिए we needed. But another boy came and he started pulling and pushing and the door will open. That means वहाँ पे वो जो रिजल्टेंट फोर्स था वो क्या था, उतना था कि वो डोर क्या हो जाए, ओपन हो जाए. सो if we conclude that all the forces applied on the object in the same direction result in a large amount of force. अगर कोई भी डोर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको डोर को ओपन करना है, यहाँ पुश करना है, तो इसका एक स्पेसिफिक क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तभी जाके ये क्या होगा, ये ओपन होगा. अगर कोई आके अगर यहाँ से इस पे फोर्स करता है, अप्लाइड करता है, तो ये नहीं खुलेगा. इसको एक स्पेसिफिक क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए. सो इफ more than one forces applied on the object in the same direction result in a large amount. तो अगर एक ही डायरेक्शन में
अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट का फोर्स वहां पे क्या होगा, एक्ट करेगा। ठीक है, ये तो आपके डेली लाइफ में आप इसको अज्यूम भी कर सकते हो। ओके, सो व्हेन वी मूविंग अ टेबल बाय अप्लाइंग मोर फोर्सेस, क्या होता है कि जब एक टेबल को मूव करना होता है तो वन बॉय इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दैट, देन 2 or 3 boys are get together and they will try to move that table. Okay, so let if 3 forces acting on the table in the same direction, that is 3 forces is, first one is F1, second one is F2 and third one is F3, then what is the resultant force? That means capital F. What is the resultant force? It is the sum of the 3 forces. It is sum of the 3 forces, that is F is equal to F1 plus F2 plus F3. Okay, any problem? But here this another example, what happened when we applied force in a opposite direction, then what will be the resultant force? Dear students, always remember, when we applied a force in a opposite direction on an object, then the resultant force will be the difference of the forces applied in the opposite direction. That means वो जो force होगा वो दोनों opposite direction के force के क्या होगा, difference के बराबर होगा. That means if two forces on a table acting on a table in opposite direction are F1 and F2, okay, then what will the resultant force? In that case, the resultant force is what I'm saying, F1 minus F2, that is difference between the two forces. यहाँ क्या होगा, difference होगा, that means minus. Any problem? But if we applied a force in opposite direction with same force, अगर वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक स्टूडेंट अगर कोई चीज को मूव करना हो तो उससे नहीं होता है, दो स्टूडेंट्स आते हैं फिर भी वो टेबल क्या होता है, मूव नहीं होता है. व्हाट हैपन इन दैट केस? इन दैट केस द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल. वहां क्या होता है, F1 और F2 क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0 हो जाता है. तब भी वो क्या होता है, टेबल मूव नहीं करता है, बिकॉज फर्स्ट बो इज अप्लाइड दैट मच फोर्स इज इक्वल टू द सेकेंड बो इज अप्लाइड. पहला जो जितना अप्लाई किया है उतना ही क्या करता है, सेकेंड भी अप्लाई करता है, इसीलिए वो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है. इट इज क्लियर? सो हमेशा याद रखोगे दैट द रिजल्टेंट फोर्स, इफ टू फोर्सेज, दैट मीन्स इफ टू फोर्सेज F1 एंड F2 एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, F1 एंड F2 अगर राइट डायरेक्शन में है, एंड द फोर्स F3 टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, देन व्हाट विल द रिजल्टेंट फोर्स, दैट F इज इक्वल टू F1, जो सेम डायरेक्शन में उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन इज द सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज, एंड वो जो लेफ्ट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए क्या होगा, माइनस होगा. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज every force has a magnitude and direction. Every force has a magnitude and a direction. हर फोर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. सो every student has a confusion that what is the magnitude, miss, what is the magnitude? So simply we can say that magnitude is what, a numeric measure of strength of a force. numeric measure होता है, that means ये आपका क्या होता है, लेंथ होता है, that is the number that how much force is applied. That means 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, it is a magnitude of force.
तो कभी एवरी फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड, होगा कि नहीं होगा? अगर कोई भी फोर्स लगाते हैं, कैसा भी फोर्स लगाते हैं, दैट इज कांटेक्ट में है या फिर नॉन कांटेक्ट में है, इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम वैल्यू, दैट मीन्स इट हैज सम यूनिट, दैट मीन्स वो या तो 1 न्यूटन लगाएगा, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड सो ऑन, 50 न्यूटन एंड सो ऑन. एंड द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. या इनवर्ड डायरेक्शन, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Okay, so it is the best example of these things is tug of war. Tug of war में क्या होता है आपका? The resultant force applied by team, मान लो 2 टीम है, तो पहला टीम भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है और दूसरा टीम भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है. जब तक दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगता है, दैट कोई भी क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है. देखते हो ना, you also experience by this game. और जब if team A will exert more forces than team B, then क्या होता है, team B क्या होता है, गिर जाता है. okay, that team will be winner, team A will be winner. okay, so if the resultant force applied by team A is more than the applied by team B, then according to that team will be the winner. okay, so जो टीम क्या करता है, उसको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, वो टीम क्या हो जाता है, विनर हो जाता है. सो सिंपली वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, कितना स्ट्रेंथ में वो क्या हुआ है, फोर्स लगा हुआ है. और डायरेक्शन, यू आर ऑलरेडी नोन अबाउट द डायरेक्शन. सो एनी डाउट इन दिस टॉपिक? ओके, सो moving on the next topic, that is effect of force. Effect of force. What are the effect of forces? So कोई भी फोर्स लगता है, वो क्या होता है, कोई ना कोई इफेक्ट डालता है किसी बॉडी पे या फिर ऑब्जेक्ट पे. फोर्स लगेगा तो सिंपल है कि क्या होगा, मोशन होगा. ओके, दैट विल cause some changes. okay, वो क्या होगा, some change लाएगा. so first क्या है इफेक्ट आपका, change the position. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है, टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स. चेंज द पोजिशन, इट इज क्लियर, चेंज द पोजिशन, इसको बताने की जरूरत नहीं है. यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल that I have already given in this video, example of book lying on the table. जब तक हम वहाँ पे force applied नहीं करेंगे, that book will not move. okay, second one is it changes the direction of the moving object. direction of moving object कैसे, डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा? अगर हम क्या करते हैं, किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट मीन्स इन राइट डायरेक्शन, और वी हैव टू मूव इन अ लेफ्ट डायरेक्शन, तो जब तक हम फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, वो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा उस मूविंग ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ बॉल, क्रिकेट बॉल. वो क्या करता है, जिस डायरेक्शन में वो क्या करता है, फोर्स अप्लाइड करता है, उसी डायरेक्शन में वो बॉल क्या होता है, मूव करता है. थर्ड इज change the speed of moving object. Speed, here you can also take that example, cricket ball. okay, अगर फोर्स ज्यादा लगाता है तो वो क्या होता है, बॉल फास्टर मूव करता है. अगर कम फोर्स लगा तो वो कम होगा. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, चौके छक्के आपको अच्छे से पता है ना. फोर्थ, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. शेप, कैन यू गिव एग्जाम्पल, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसे किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, शेप चेंज होगा. यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ बैलून. ओके, जब आप बैलून लेते हो और उसको क्या करते हो, उसको पुश करते हो, ओके, विथ योर हैंड. इन्फ्लेटेड बैलून है,
इन्फ्लेटेड बैलून है और जब उसको बिटवीन योर हैंड्स उसको पुश करते हो, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग सम फोर्सेज ऑन दैट बैलून, एंड इन दैट कंडीशन यू ऑब्जर्व दैट द इन्फ्लेटेड बैलून चेंजेस इट्स शेप. ओके, वो क्या करता है, अपना शेप चेंज कर लेता है. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंट. एंड द लास्ट इज it change the size of an object. साइज कैसे चेंज हुआ, दैट इन्फ्लेटेड बैलून, उसी एग्जाम्पल को हम लोग फिर लेते हैं. वो जो इन्फ्लेटेड बैलून है उसका क्या होगा, जब आप उसको बिटवीन योर हैंड्स पुश करोगे, फोर्स अप्लाइड करोगे, तो क्या होगा, उसका साइज कम होगा कि नहीं होगा. पुश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आएंगे, उसके शेप बदलेंगे, प्लस उसका साइज भी क्या होगा, चेंज होगा. जब आप पुशिंग छोड़ दोगे, आप फोर्स अप्लाइड करना छोड़ दोगे, दैट विल कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके, दैट मीन्स दैट विल कम इन इट्स ओरिजिनल साइज ऑल्सो. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंट. सो यू कैन go through this topic. These are the very important topic, that is effect of forces. Okay, so your next topic is types of force. Types of forces. What are the types of forces? Depending on this, that a force acting between any two object can be classified into two types. अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट two types of force is there. Two types. First one is contact force. Second one is, it's vice versa, that is non-contact force. Contact force and non-contact force. So, what is contact force? A force that acts when two objects come in contact with each other. Simply, by name it is clear. What is that? A force that acts when two objects come in contact with each other. Contact means दोनों का क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए. जिस पर फोर्स लग रहा है और जिससे फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स. ओके, ये हमेशा क्या होगा, जब तक आप ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट टचेज ईच अदर डायरेक्टली. ये हमेशा क्या होगा, जब तक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डायरेक्टली टच में नहीं आता है, इंटरेक्ट में नहीं आता, तब तक ये फोर्स नहीं लगे. बिकॉज बाय नेम इट इज कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट होना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इट्स वाइस वर्सा, दैट अ फोर्स दैट कैन एक्ट इवन व्हेन द इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. तो वो फोर्स जब कोई इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में नहीं भी आता है, जिस पे फोर्स लग रहा है और जिससे फोर्स लगा रहे हैं, वो कांटेक्ट में नहीं भी आएगा, दैट मीन टच में नहीं भी आएगा, तब तक वो फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क करता है. दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. बट बिफोर दैट, हियर सम टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड हाउ मेनी टाइप्स? इन योर क्लास 8 वी हैव टू नो अबाउट two types of force. That is, first one is muscular force, and the second one is frictional force. Okay, first one is muscular force and the second one is frictional force. Muscular, what is the muscular means? That force which will applied by your muscles. आपके मसल्स से जो फोर्स अप्लाइड होते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ओके, सो इन दिस फोर्स वी कैन से दैट द फोर्स दैट कम फ्रॉम द एक्शन ऑफ मसल्स, that is called muscular force. And can you give the example? Okay, very common examples are there. That is walking, stretching, eating, writing, playing, pulling, pushing. ये क्या है, आपका मस्कुलर फोर्स है. जब वॉक करते हो, दैट मीन्स आप मसल्स पे आपका क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है. स्ट्रेच कर रहे हो, आपके हैंड्स में क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है. राइटिंग इज ऑल्सो अ
टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और टाइप ऑफ मस्कुलर फोर्स. राइट कर रहे हो, दैट मीन्स यू कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन योर बाय योर हैंड ऑन योर पेन. ओके, पेन पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और उसी फोर्स के चलते आप क्या कर रहे हो, राइट कर पा रहे हो. एनी प्रॉब्लम? ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? हियर you have to read very common thing, and in next chapter I will give you the broad explanation of the frictional force. That is it is itself your next chapter, that is separated chapter is there, that is friction. Okay, so but here we know about what is the frictional force. So friction, that means the force which is responsible, listen carefully, the force which is responsible for change in state of motion. The force which is responsible for change in state of motion, okay, is called frictional force. That means frictional force वो force है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके मोशन पे, स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा. दैट इज बाइसिकल कम टू अ हॉल्ट वंस पेडलिंग इज स्टॉप्ड. जब आप साइकिल चलाते हो तो अगर आप पेडल्स को चलाना बंद कर दो तो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है. रुकता है कि नहीं रुकता है? Why it stops? Because here frictional force is there. That means the force exerted by the friction. That means friction कब होगा, जैसे हम लोग वॉक करते हैं, तो वॉक करते हैं तो क्यों नहीं हम लोग फिसल जाते हैं? क्या है जो हमें वो रोकता है? That is the friction between the आपके जो फ्रिक्शन जो आपके बिटवीन योर लेग्स में जो आपके फ्रिक्शन है, और द पॉइंट वेयर वी वॉक, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं. दैट मीन्स फर्श पे चल रहे हैं, टाइल्स पे चल रहे हैं. और जब यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देखोगे, जब व्हेन वी वॉक ऑन टाइल्स इट्स स्लिपरी, बट देयर वी कैन ऑल्सो मूव. दैट मीन्स दैट हियर सम फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा अपोज करता है. और फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट. अगर हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा, राइट डायरेक्शन में वर्क करेगा. तभी वो जाके क्या करता है, मोशन को अपोज करेगा. ठीक है, मोशन को अपोज में रोकने के लिए, मोशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग को क्या, वो हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा. सो इट ऑल्सो व्हेन अ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज इट अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेज. आपके सरफेस और लेग के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है. दैट मीन्स कॉन्टैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ. ओके, पेडलिंग, दैट लेग्स और पेडल्स के बीच में क्या हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, तभी जाके वो क्या हुआ, फोर्स एक्ट किया. ओके, सो दैट अ फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स. सो हियर आर द frictional force is also a contact force. Okay, so can you give the another example of frictional force? Okay, so a ball rolling on the floor slows down and finally come to rest. कोई भी रोलिंग अगर फ्लोर है तो वहां पे अगर बॉल को हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ये कुछ दूर जाता है और अपने आप रुक जाता है. रुकता है कि नहीं? इन क्रिकेट फील्ड ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी सीन. ये आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अगर कोई बैट्समैन कोई बॉल हिट करता है और जितना स्पीड से वो हिट करता है, जितना फोर्स एक्सर्ट करता है, वो कुछ दूर पे जाके वो क्या होता है, बॉल अपने आप रुक जाता है. रुकता है कि नहीं? दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉल. वो क्या कर रहा है, मोशन ऑफ द बॉल को अपोज कर रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन opposite direction. That force is known as the frictional force. Any doubt? If you have any doubt, then you can ask in your group.
Okay, moving on your next point, that is non-contact forces. Okay, so tomorrow we will learn about the non-contact force. Okay, so if you have any problem regarding what we have taught today, that is force, second one is unit, third one is, what is that, effect, resultant force, इफेक्ट के बाद टाइप्स ऑफ फोर्स, एंड दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, and first one is muscular and second one is frictional. Okay, so today we have learned these topics, so you can make your notes. I have already sent some pictures of your book. Okay, from there you can find your notes, and if you have any problem then you will ask in your group. Okay, from timing 2 p.m. to 5 p.m. Okay, thank you.